22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से शुरू होने वाली पाक भारत कशीदगी 6 और 7 मई को अस्करी तसादुम में बदल गई और फिर 10 मई को होने वाले सीज फायर के बाद सिफारती जंग में बदल गई है। अब दोनों ममालिक इसी सिफारती लड़ाई में मसरूफ हैं। भारत के 7 सिफारती वफूद गुज़िश्ता 10-11 दिनों से मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं और भारतीय मौक़िफ़ पर हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के दौरों के बाद कल से पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ने भी सिफारती मुहिम शुरू कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका में मुलाकातों में मसरूफ़ है। साथ ही आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फ़ातमी ने रूस में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है और सदर पुतिन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त उनके हवाले कर दिया है। जबकि अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी वफ़द ने आज अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांसीसी मंदूब से मुलाकात की है। इससे पहले सिफारती वफ़द ने कल अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के मुस्तकिल मंदूबीन से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात हुई। साथ ही पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुंतखब रुकन ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो ने OIC के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान वो नहीं है जैसा कि भारत अपने मीडिया और दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। Use its policy of collective punishment, if it continues to victimize the people of Kashmir, if it continues to use the wolf whistle of terrorism to demonize an entire population, then unfortunately that environment will create more cannon fodder for terrorists to use tomorrow for their nefarious designs. So these are the 3 basic agenda items that we are appealing for, that we seek your assistance with, is to convince our neighbor to act like the great power it envisions itself as, and not like a spoilt child who cries wolf. If they have evidence, present that evidence. I lost my mother, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, to terrorism. I will go and catch those people myself if they're within my territory. But the fact of the matter is that in this case, they are not. As long as they continue with this politicization, it will frustrate the genuine efforts of Pakistan. It will frustrate the genuine efforts of members of this country who face this menace within their borders. The politicization of terrorism undermines the fight against terrorism. I want to defeat terrorism. The political leadership in Pakistan, the military leadership in Pakistan today, all of us have gone through the fire, if it were, as far as this issue is concerned. On the political front line, the political forces have faced these beasts, have called them out and paid a heavy price. On the military side, our military leadership have faced these beasts on the battlefield. They fought them in South Waziristan. They fought them in North Waziristan. They've come up through this conflict. There is no sympathy in any aspect, in any corner of the Pakistani state for such groups. Pakistan is not the caricature that India would like to present on their media and before the world. And we look forward to working with them, to working with the international community, to address the issue of terrorism, to address the issue of Kashmir, to restore the Indus Water Treaty and establish peace in South Asia. खुद भारत में भी पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली को पजीराई मिल रही है और मोदी हुकूमत को अपने ही अवाम और तज्जियाकारों से ये ताने पड़ रहे हैं कि भारत के 7 सिफारती वफूद अलग अलग ममालिक में जाकर जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान का एक ही सिफारती वफ़द एक ही मुल्क में कर रहा है। एक तज्जियाकार ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि भारत ने 7 अलग अलग सिफारती वफूद गियाना, पनामा, सियरा लियोन और स्लोवेनिया जैसे ममालिक में भेजे जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन हैं और पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिर्फ एक ही वफ़द न्यूयॉर्क भेजा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम 15 ममालिक से वहीं मुलाकातें कर रहा है। इसी तरह कनाडा में 15 से 17 जून को होने वाली G7 समिट में भारत को बतौर मेहमान मुल्क शिरकत के लिए दावतनामा ना मिलने पर मोदी हुकूमत पर तनकीद का एक और दरवाज़ा खुल गया है। इसे सिफारती ब्लडर करार दिया जा रहा है और भारत में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस केरला ने अपनी एक तंजिया पोस्ट में G1 लिखा और एक पोस्टर शेयर किया है और लिखा है कि थैंकलेस G7 और G20 को उनके सियासी खेल में शिकस्त देने के लिए रद्द-ए-अमल के तौर पर हमारे विश्वागुरु नरेंद्र मोदी जी G1 शुरू करेंगे और किसी और को उसमें शिरकत की इजाज़त भी नहीं देंगे और ये एक और मास्टर स्ट्रोक लम्हा होगा।
मगर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि मोदी हुकूमत के हालिया फैसलों, इकदामात, बयानात और खामोशी पर तकरीबन तमाम ही भारतीय अपोजिशन जमातें कड़ी तनकीद कर रही हैं और बार बार मुतालबा कर रही हैं कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उठने वाले सवालात का जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म मोदी पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लें। आज कांग्रेस समेत भारत की 16 अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का दिल्ली में इजलास हुआ, जिसमें एक मुश्तरका खत के जरिए वज़ीर आज़म मोदी से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। इजलास के बाद अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट का इजलास न बुलाने और सीज फायर के हवाले से मोदी हुकूमत की खामोशी पर कड़ी तनकीद की। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? साथ ही कांग्रेस सदर ट्रंप के सीज फायर के दावों और वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। तो वज़ीर आज़म मोदी जवाब देते हैं, जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वज़ीर आज़म मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो यही नहीं, भारतीय ओपोजिशन ये सवाल भी उठा रही है कि अगर सीज फायर ट्रंप के कहने पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया था तो इसका मतलब है कि भारत जंग जीत रहा था, तो फिर क्यों हमने जंग रोकी, जंग जारी रहने देते। मगर अगर पाकिस्तान सीज फायर की दरख्वास्त नहीं कर रहा था तो भारतीय हुकूमत का दावा गलत है। सीज फायर का जो मुद्दा है, हम लोग के जो देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका मैंने एक बयान पढ़ा कि सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर उनकी पहल पर किया गया। तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था, इसका मतलब है कि सेना वाले ठीक कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को हरा रहे थे, तभी तो पाकिस्तान डर के मारे सीज फायर करना चाह रहा था। तो अगर पाकिस्तान सीज फायर चाह रहा था तो तुम काहे माने भाई, 2 दिन और चलने देते, सेना वाले मार के ठीक कर देते उनको। और अगर पाकिस्तान वाले सीज फायर नहीं चाह रहे थे तो जो आप दावा कर रहे हैं वो गलत है। अब सीज फायर कर लिए तो फिर आके जनता काहे बेवकूफ बना रहे हैं? आपके सामने है कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उसके बाद अब सिंधु का डिबिया बांटने से तो कुछ होगा नहीं। सवाल अपनी जगह, तुकबंदी कर देना, 22 मिनट में बदला ले लिया। अरे भाई 2 दिन चल देने थे तो 22 मिनट में जब बदला ले सकते हैं तो ये भाषणबाजी करना, गरम सिंदूर पता नहीं कहाँ खोल के, मेरे कहीं कढ़ाई वढ़ाई ना पलट जाए मोदी जी की, कोई सिंदूर कहीं पलट जाए, कहीं इधर उधर फैल जाए। मतलब देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है। जितना खर्चा युद्ध में नहीं हुआ उतना मोदी जी ने अपने प्रचार पे खर्च करवा लिया। मगर जहां मोदी हुकूमत पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदों के इन सवालात का सामना करने से गुरेज कर रही है, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुब्बुल वतनी की बहस को एक और नहज पर ले गई है। पहले बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रही थी, मगर अब बराह रास्त भारतीय मुसलमानों को ही निशाने पर रख लिया है। मोदी हुकूमत अब यह बयानिया बना रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पर तनकीद कर रहा है वो असल में भारतीय मुसलमानों को खुश कर रहा है ताकि उसे मुसलमानों का वोट बैंक मिल जाए। और ये बात बीजेपी के किसी कारकुन या मकामी रहनुमा ने नहीं कही है, बल्कि मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने कही है। गुज़िश्ता हफ्ते नरेंद्र मोदी के मशरकी बंगाल के दौरे और उनके बयानात पर रद्दमल देते हुए वहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि औरतों को सिंदूर देकर उनकी बेइज्जती ना करें, अगर आपको सिंदूर देना ही है तो अपनी बीवी को दें। और आज ममता बनर्जी पर तनकीद करते हुए भारतीय वज़ीर दाखिला और नरेंद्र मोदी के करीबी साथी अमित शाह ने यह कह दिया कि मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर की मुखालफत की। Please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband, but PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया।
दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया, मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी, केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। एक तरफ बीजेपी भारत के तमाम ही मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर के मुखालिफिन और पाकिस्तान के एजेंट्स के तौर पर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ मोदी हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक में जो 7 सिफारती वफूद भेजे हैं उनमें मुसलमान लीडर्स भी शामिल हैं, जो खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का बयानिया पेश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भारतीय सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने बीजेपी हुकूमत के मुसलमानों से मुतालिक इसी दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाया था, पर्दा उठाया था कि बीजेपी भारत के अंदर मुसलमानों से कैसे सलूक करती है और मुल्क से बाहर कैसे उनके रहनुमाओं का रवैया बदल जाता है। इसी तरह भारत के अंदर पैलेस्टाइन लिखा हुआ बैग पार्लियामेंट में लाने पर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी पर तनकीद करते हुए उन्हें हमास से जोड़ने वाली बीजेपी रहनुमा जब सिफारती मुहिम के लिए कुवैत पहुंचते हैं तो फलस्तीन की हिमायत में बयान दे देते हैं। मैं नहीं भूला हूं जब कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के अंदर ये बैग लेकर आई थी जिसके अंदर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र, उनके नेताओं, उनके सांसदों ने कितना हमला किया था प्रियंका पर, उन्हें हमास के साथ जोड़ दिया था। सबसे बड़ी बात, इस वक्त मुस्लिम देशों की यात्रा पर हैं करीब 57 सांसद, जिनमें से एक ये निशिकांत दुबे यानी डिग्री दुबे भी हैं। ये व्यक्ति कुवैत में है और यहां पर पैलेस्टाइन की तारीफ कर रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने प्रियंका गांधी वाड्रा को हमास के साथ जोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बैग में पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। अब यह व्यक्ति कुवैत में है तो पैलेस्टाइन की महानता के बारे में बोल रहा है। फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी $39 मिलियन जो है हमने रख रखा है जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहाँ बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम 2 नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। मैं इसे दोहरे मापदंड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशिकांत दुबे ने इसी बैग का जिक्र किया था। जी हां, जब संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा ये बैग लेकर आई थी तब तो प्रहार किया ही था। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद निशिकांत दुबे ने इस पुरानी तस्वीर का जिक्र किया था और क्या कहा था मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के फिलिस्तीन बैग लहराने के कारण वहां के आतंकवादी संगठन हमास ने पाकिस्तान जाकर इस फरवरी में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ कश्मीर दिवस मनाया। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या में भी हमास का नाम आ रहा है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस आतंकवादी संगठन के मन को बढ़ाकर हिंदुओं की हत्या कब तक कराएगी? सबसे बड़ी बात, अब तक पहलगाम में हमास का कोई लिंक सामने नहीं आया है। मगर निशिकांत दुबे, याद कीजिएगा, ये जब मुस्लिम देशों की यात्रा पर जा रहा था तब इसने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि इसका एक पूरा रिकॉर्ड है जहां वो हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करता है।
लगातार जहर उगलता रहता है। याद कीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम देशों की यात्रा पर जाना था और अपने आप को महान पेश करना था। इस व्यक्ति ने क्या कहा था, सुना जाए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, इनको शर्म आती है निशिकांत दुबे आपको। दूसरी जानिब इन तनाज़ात से हटकर हालिया दिनों में भारत में उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान मौजूए बहस बने हुए हैं, क्योंकि वो भारत के पहले आला ओहदेदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भारत के जंगी तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ किया था। उनके इस एतराफ़ पर और सच बोलने पर भारत में तनकीद हो रही है कि आखिर सच बताने की ज़रूरत क्या थी, मगर साथ ही अब तैयारे गिरने पर नई नई मंतक़े दी जा रही हैं। भारतीय मीडिया में जंग की बातें करने वाले और कराची और लाहौर पर भारतीय हमले की झूठी खबरों पर जश्न मनाने वाले भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या भी अब भारतीय तैयारों के नुकसान पर यह कह रहे हैं कि अगर हमारे तैयारे गिरे भी हैं तो हमें क्या नुकसान होगा, हम तो अमीर मुल्क हैं। देखिए जंग से पहले और जंग के बाद का मौक़िफ़। बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। अगर जेट्स लॉस्ट भी हो गए तो यार हमें कौन सा सऊदी अरबिया चाइना से पैसे मांग के खरीदने। चलो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट्स हमारे, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो गए। मैं 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 16 चले गए, 20 चले गए। हमारे लिए हाथ का मैल है यार। अमीर मुल्क है, अमीर मुल्क है। हमारी करीब 670-680 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या हुआ अगर चले गए जेट्स? तो वैसे तो यहां पे किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि डिक्लेयर नहीं करा। अगर नहीं गए तो ठीक है, हाँ गए तो ठीक है, दैट्स इट। सिर्फ यही नहीं, गोदी मीडिया का एंकर कुछ दिन पहले ये दावा कर रहा था कि भारत ने पाकिस्तान को कंफ्यूज करने के लिए खिलौना फाइटर तैयारे भेजे थे, वो पाकिस्तान ने तैयारे समझकर गिराए हैं। और फिर अब गोदी मीडिया का एंकर कह रहा है कि तैयारा गिर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, पाक भारत सीज फायर के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने तासुर दिया था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की है, मगर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने से पहले बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग होती है और हालिया तनाज़े में ऐसा कुछ नहीं हुआ। There's a lot of space before that nuclear threshold is crossed. A lot of signaling before that. I think nothing like that happened. कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।